अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਮਦੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਾਂ ਹੱਤਾ ਕਿ IG ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿ IG ਦਾ ਖੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਦੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਫਰਦ ਨਾਲ, ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ, ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੁੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਆਮਦੀ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਔਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਦੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੋਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਅਕਲੀਤੀ ਰੁਕਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਬੋਲੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋੜ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ, DSPs ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ 13 ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 13 ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥਾਲ ਕਟੋਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾ ਲੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁਤਬੇ ਜੁਮਾ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਹਲਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਲੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਹਲਾਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ? ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਦੇ ਆਮਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਹਫਜ਼ ਪਖਤੂਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਲਾਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ
इन्हों ने तो उत्थे मूवमेंट भी कोई नहीं चलाई। तहफ़ुज़ तो इन्हों का कोई नहीं, पर इन्होंने अपने तहफ़ुज़ की कोई मूवमेंट चलाई है तो दसो, कभी सुनी जे किसी पासे कोई इश्तिहारबाजी, कोई गल, कोई बात। फिर हर रोज़ स्टैप बाय स्टैप एक एक स्टैप अगे वधदे जांदे ने। मतलब पहला आखण दे अजान नहीं दे सकते, फिर ये अपनी मस्जिद नूं मस्जिद नहीं आख सकते, फिर ये इबादतगाह का हक इन्हां दा जिहड़ा ओह तामीर नहीं कर सकते, करन तो उन्हें तरोड़ लियो, वो भी जायज़ है। उसके बाद ये अपना कोई इजतमा नहीं कर सकते। मतलब अन्ने आखे हट्टी लुट लई। भाई गल ये वे कि तुसीं वेखो तो सही कि उस रवे दे विच हर साल उत्थे उन्हां नूं कानफ्रेंस की किन्हां नूं इजाज़त दी जाती, जिहड़े 1% भी उस शहर की आबादी का नहीं है। जिहड़े 95+ % ने उस शहर की आबादी का, उन्हां नूं गैदरिंग का, मीटिंग का, कानफ्रेंस का, जलसे का हक जिहड़ा वो पिछले 30 साल 40 सालों तो नहीं मिल रहा, एक दफ़ा भी नहीं दे रहे। टटाई इनू आखन दे, बेशर्मी आखन दे, कुछ ना तो यदा धरना पैना ना, जो कुछ करती पे नहीं हुकूमत करती है या सिस्टम जो करता पाया। मेरी पिछले हफ्ते एक उत्ते जिमींदार दोस्त ने उन्होंने गल हुई, तो वो इंज नहीं बड़े आलम दीन या इस तरह की, लेकिन इंसानों की सोच तो नाल नाल चल रही होंगी है ना। बल्कि मिर्ज़ा साहब यानी बानिया जमात अहमदिया ने जिहड़ा मेन काम किया ही ये वे कि उन्हां दे विचों ही आम पचादे जे या जिहड़े अनपढ़ भी बंदे सन, उन्होंने वो गल खुदा ताला दा जिहड़ा तसव्वुर है, अंबिया दा तसव्वुर है, इंस्टीट्यूशन जिहड़ा हुंदा नबूवत दा, इहदा की सिस्टम हुंदा है, किवें चलदा है, इहदे मगर खुदा ताला दी तकदीर किवें काम करदी है, अल्लाह ताला किस तरह अपनी वजूद दा, अपनी ज़ात दा सबूत दिंदा है, अपने अंबिया दे ज़रिए कायम कीतियां हुई जमातां दे ज़रिए, और उन्हां दे अकायद किवें दूसरिਆਂ नालों उस वक्त मुमताज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो तो खूज लमकण वाले काम पहला सारे कीती बैठे होंदे ने, तां ही तो अल्लाह ताला नूं बंदा भेजना पैंदा। और उस वेले उन्हां दे शऊर नूं नबी या खुदा ताला दा जिहड़ा भी उस वक्त दा फरिश्तादा होवे या खलीफा होवे, वो पॉलिश करदा है। वो ही अल्लाह ताला दी दित्ती हुई रहनुमाई के जरिए उन्होंने चमकाता, उन्होंने दसदा कि जिमें जिमें तुहानूं कोई गल्ली ला लैण, एक तरीका कोई नहीं, ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कभी दूर तक। मतलब कि आमदियां का मुआशरा होवे तो उहदे विच इह जिहड़ी तमाशबीनियां तुसीं करदे हो करन देवे जमात या जमात दे साहिबे फहम लोग, क्योंकि उन्होंने आमद उन नास नूं दस दिता गया कि यह तवीज़ धागे ते आ जिहड़े उरां परियां कढ के तो उत्थे मंजियां ते सजा लैंदे हो, कोई नहीं गल शाल। नमाज नूं किसी ने पूछा बानिया जमात अहमदिया नूं कि जी मैनूं भी कोई वजीफा दसो, उन्हें आख्या वजीफा नमाज तो वड्डा कोई नहीं, तो नमाज टाइम नाल पढ़ लवो ना, तो यह बड़ा वड्डा वजीफा है। इस तरह जिहड़े तुहाडे ते हक हकूक ने, तुहाडे इंसानी हकूक अदा करने, हमसायगी के हकूक अदा करने, आप एक शरीफ आदमी के तौर पर रहना, पुरअमन मुआशरा कायम करना, घरां दा माहौल पुरअमन कायम करना, ये करन लग पवो तो तुहानूं पता लग जाए तुसीं वेले ही ना होवो दूजिआं दे बंदे मारन वास्ते। लेकिन लिहाजदारी या जिवें तुहाडी रवादारी, जाली रवादारी मैं उन्होंने आखां, तो उहदे तहत तुहाडे कोड़े नूं सोहना आखी जाना जिहड़ा काम कोई नहीं, काम तो तुहाडे कोड़े ही ने सारे। घर बैठा बंदा मार घतना, कित्थों दी इंसानियत है, कित्थों दी कोई। हाँ अलबत्ता एक चीज़ है जिहड़ी कुदरत भी नाल नाल दसदी है ना अपना आप, वो ये वे कि जे तुसां चुप कर जाना जिहड़ा है वो पॉलिसी बनाई सी, ते ए जिहड़े वेले तुहाडे सड़कां दे उत्ते मजहबी दहशतगर्द और मजहबी कट्ठ मुलाइयत जिहड़ी है वो यूनीफार्मां दे विच बंदे मार गए ने, उन्होंने झूठे मूँह शहीद करते फिरे हो तुसीं मीडिया ते अगे पिछे। लेकिन तुसीं वेखो उन्हां शहीदां दा जिहड़े मजलूम भी सन बेचारे, जिन्होंने यूनीफार्म ते भेज पा के भेज दिता, डंडे सोटे अगे कर दिते ने, असला उन्होंने को वापस ले लिया गया, है तो मजबूर ही सन, है तो उन्होंने वास्ते जिल्लत का समान घरों इदारे ने तो पिछों हुकूमत ने करके आप दिता सी। लेकिन फिर उन्हां दे उत्ते तुसीं बोल नहीं सके। 8-10 बंदियां दे कतलों के उत्ते जिहड़े यूनीफार्म च मर्डर सन, उन्हां मर्डर्स के उत्ते तुसां समझौता किया और हारिया होया समझौता किया। और जितने उस पूरे 2 हफ्तियां दे विच दानिशवर और सहाफ़ी और मीडिया के उत्ते गल करने वाले सन, उन्हां सारियां ये गल कीती है कि तुसां हुण हुकूमत दे, रियासत दे, रियासती इदारियां दे या लॉ एनफोर्समेंट दे जिहड़े इदारे ने, सिविल दे नूं मूँह देण वाले सिविलियन खास तौर पर, उन्हां दे पल्ले हुण कख नहीं छड्डिया। आ जाके
एक फौज बची है, उन्होंने इन्होंने मौलवियाँ आखना कुछ नहीं, तो जिदन मौलवी उन्होंने सीधे होने दे उदन उन्होंने लितर भी मार लैने ने। इस गल का फौज नूं भी पता है, इस गल का मौलवियां नूं भी पता है। विशकार एक बोबो शेले जी जी हुकूमत जी पेंडुलम बनी है, कदी उधर तो कदी उधर, विच उन्होंने ताप चढ़ जाता कि वह आंदा मैं सिविल सुप्रीमेसी की भी गल करनी, लेकिन एक गंदे जोड़े हो, चलो साढ़े तो मारते पे हो बंदे तुसीं, लेकिन वो सबूक सैयद नाल गल भी होंदी सी पिछले हफ्ते, तो मैं उन्होंने ये गल आखी, मैं आख्या हुण आखे जी मैं अज इस पेशावर वाले कतल के उत्ते कोई थोड़ा खबर लाई, उन्हें अपने ऑनलाइन पेपर पर वैसे गल की थी, वो मैंने दसते ने, उस आख्या होना व्हाट्सएप ग्रुप है कि इत्थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਿਓਂ ਚੋਖਾ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਗੰਦੇ ਹੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਰੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ, ਮੁਲਕ, ਕੌਮਾਂ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ना चलते ने ना कायम रह सकते हैं। उन्होंने मैं पूछा, मैं आख्या मैनू चलो कमला गल करता सियाणा ही क्यास कर लेंदा, मैनू एक गल तो दसो कि यह पेशौर ते सरहद नालों गई गुजरी थावें अहमदियां आस्ते सब तो ज़्यादा मुखालफत और सब तो ज़्यादा तमाशा लाने वाली और इंतहाई मतलब बेगैरती की हद तक जिथे रियासत चुप है, उस तो इलावा मतलब पेशावर तो सरहद इन्होंने इलाकों तो इलावा भी कोई औखी थां है? आखिर जी बाज़ार तो नज़र नहीं आती। तो मैं क्या जी असा पेशावर नहीं छड्डिया तो पाकिस्तान असीं कित्थे छड्डने सारा? टावा बंदा मतलब मारी जानते हो तुसीं, तुहाडे ज़हन च इंज ही है। एक गल तुहानूं वाज़े दस छड़िए भी जे तुसीं सानूं सारिआं नूं मार सकदे हुंदे ना, तुसां जिहड़ा सवेर दिन चढ़न का इंतज़ार कोई नहीं करना, तुसीं राती मार के सौंदे। मुसीबत है तो सारे मरदे नहीं पे। दूजी गल ये कि पाकिस्तान दे कदी ननकाने च, कदी इत्थे, तो कदी पंजाब, तो कदी लोधरा, तो कदी कित्थे जिथे जिथे बंदे मारी होंदे हो उत्थे आमदी है ने तो पे मरदे ने ना। जेड़ा तुसी समझदे हो भी असीं कला कमा करना, वो कले कमे दी ते तुहाडी असलीयत ये वे कि जिथे जिथे मतलब जिथों की खबर होंदी उत्थे आमदी है ही कोई नहीं सी, तुसां मार कित्थों लिया? और दूजा है वो तो कल्ला ही तो नहीं सी, उत्थे बोतल च अहमदी धारा ऐसा जो तुसा जाके मार लिया। उत्थे सिस्टम भी मौजूद ने, उत्थे सारे बंदे भी मौजूद ने, और उत्थे वो जिंदा नहीं जिंदा धर ने। अलबत्ता जिहड़ी गल उस जिमीदार साढ़े दोस्त ने राय गुलाम अहमद ने की, उस आख्या यार मैं तो अनपढ़ जिहा बंदा, जिमीदारा ही मेरा काम है, मेरा कोई काम तो नहीं, लेकिन मैनूं इन्ना तो पता लग गया वो जो पिछला फिरौन आ ना, वो उत्ते एवें इल्ज़ाम पे लाते हैं, वो आते हैं बे वो कोई बंदे पैदा करना या तखलीक या मखलूक नूं पैदा करने का उहदा दावा कोई ना, निरा इंज ही आ बंदा टंग देना तो आखना जे मैं आख्या तो थले ला दिया नहीं तो मार छड़िया। वो मौत का जिम्मेदार साईं बनया खलोता, मैं जिन्हों चाहवां जिउण दियां, जिन्हों चाहवां ना जिउण दियां। उस आख्या ये जड़े ने ये उस फिरौन तो किहड़े घट ने भी साडे मत्थे लाण भी फलाना बन्ना साझा, फलाना पानी रोकिया असां, या फलाने का असां उत्थों डंगर नहीं लगन दिता, कोई वजह साडे नाल तनाज़े की सिवाए इस दे कोई होर है कि असीं एक खुदा ने भेजिया तो असां उहनूं मान लिया? जमात अहमदिया दे मत्थे कोई वो जुर्म लाण ना जिहड़ा कोई मतलब कानूनी जुर्म है या कोई समाजी जुर्म है, कोई सियासी जुर्म है, कोई आईनी जुर्म है। इन्ना जो जे एक भी नहीं तो यदा मतलब हो सकिया मेरी थोड़ी जी जी अकल मेरा काम करता है वो ये वे कि पाकिस्तान दे इदारे और पाकिस्तान का मुआशरा बहसीयत मजमूई होण खुदा नूं सिद्धा होया खलोता है। ये वही ज़बान मैं बोलता पाया। आमदी हो सकिया या आमदीयत निज़ाम जमात या रब्बा या फलाना ये सारे हुण पासे ते ये सीधे होए खलोते हैं खुदा नूं, ते खुदा इन्हां दा है कोई ना, जे इन्हां दा कोई खुदा हुंदा ते उहदे तो डरदे। ये बेखुदा और धैर्य ने सारे, और ये खुदा नूं कोई नहीं मनदे। ते ये इस वक्त मिर्ज़ा साहब या मिर्ज़ा साहब की जमात की मुखालफत बानी जमात अहमदिया की सिर्फ इस बुनियाद पर पकड़ते हैं बखुदा साथों हुंदा कौन है इनू भेजण वाला। प्रैक्टिकली जो इस वक्त और उन्होंने की गल तो मैं एग्री करना बिल्कुल, उन्होंने का मकसद है भी साथू पुछ के क्यों नहीं निकलिया?
जिन्हों आमदी मन्ने बैठे ने, जिन्हों आमदी बानी जमात अहमदिया खुदा दा फरिश्ता मन बैठे ने, इस जमाने का इमाम और इमाम महदी और खुदा नूं आया होया, जिन्हों ये मन बैठे ने उन्होंने गलन तो पहला खुदा ने इस पाकिस्तान की हुकूमत ते पाकिस्तान के मुलवाणियां तो क्यों नहीं पूछा। अप्रूव करके खुदा गलदा तो चलो मुड़ असी कुछ ना आंदे, खुदा हुंदा कौन है ना सातों पुछया बगैर भेजण वाला। ये वे इस वक्त तुहाडा स्टैंड। आमदी हुण माड़े ने तगड़े ने साहिब हैसीयत हैं नहीं ने, अगों परता देन जोगे ने या नहीं देन जोगे। आमदियां दा भी जिहड़ा जवाब है वो ये वे कि तुहानू दिसदा या नहीं दिसदा, सान खुदा दिसदा। क्योंकि हुण मतलब परचोल कर लो, इत्थों तलाश कर लो विच है की शै। अगर ना तुहाडे आखो ना फलानी थां ते कोई इज्जत बेइज्जती की गल सी, या कोई साडी जमीन तुसां वड़ लई है या असां तुहाडी वड़ लई है, या मतलब कोई होर ना लाओ फलाना साडा तुहाडा न्याय सी, लैण देण सी, वो मुकाण वास्ते साडी लड़ाई हो पई है, कोई सरहदी तनाज़ा है, कोई सीटां दा असैंबलियां दा जो तुहाडा सारा गंद करदे रहिंदे हो, वो जिहा साडा तुहाडा कोई रौला कोई ना। आ जा के रौला तो यही है कि जिहड़ा इस जमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि आखिरी जमाने आना है, हुण तुहाडे स्कॉलर जिहड़ा ना चंगा स्कॉलर होना हो, जिस तरह गांधी साहब ने वो आंदे ने बिल्कुल ठीक है, किसी आना ही कोई नहीं सी, बस इंज तारीखी तौर पर गलती लगी सी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जिहड़ी है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो दुरुस्त नहीं, तुहाडे इस वक्त की अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है। और खातम दा पंजाबी तर्जमा जिहड़ा है ना वो अगर राइज हो जाए तो मुड़ तुसीं राजी हो, खातम दे अरबी तर्जमे नाल तुहानू मौत पौंदी है। यही रौला, होर तो कोई रौला नहीं। दूसरा ये वे कि जे इस मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी तो तुहानू मरन लग पाउंदे हो, गाला अन्ने आ जांदे ने बे क्यों आ गया, जिहड़े पिछले आए ने जिन्हां नूं मन्नी बैठे हो उन्हां दी की दलील है तुहाडे कोल? किंदे काने च खुदा ने आख्या तो फरिश्ते कदों मतलब विच पग बन के बहिंदे ने आके? जदों भी खुदा ताला नूं कोई आउंदा है ना उस टाइम उन्नू ही अल्लाह आंदा है उठ के ते ऐलान कर, तो जिस वे वो आंदा है उन्होंने मनण वालियां से उस जमीन हमवार इंसानी दिलों के विच नफासत और शराफत और दयानत खुदा ने पाई होंदी है, तो चुप करके उन्हें मन लेंदे ने, माड़े नहीं है तगड़े। कुर्बानी मुड़ इंज देंदे ने जिवें अहमदी देंदे पे, तुहाडे वांग नहीं कुर्बानी उन्हां दा हिसाब हुंदा कि दाता साहब तो 4 देगां झाड़ियां ते आख्या असीं कुर्बानी कर ली। इंज जायदादां बंदे वसदे घर इंज करके उजड़न वास्ते सामने रखने पाउंदे ने। उस नबी उस खुदा ताला दे भेजे हुए मन के यह कुर्बानियां चो गुजरना पौंदा। सानू उन्हां दित्तियां तो कोई अफसोस नहीं, और सन उन्हां कुर्बानियां ते वड्याई भी कोई नहीं कि वे बड़ा असी समझने हैं असी बड़ा काम कीती बैठे। नो, असी तो समझने हैं भी अल्लाह ताला दी दित्ती हुई तौफीक हुंदी, और जिन्हां दे उत्ते उन्हें आजमाइशां पाणियां हुंदियां ने उन्हां नूं उस काबिल भी वो आप करदा है। जिन्हां कोल वो शहादतां लैणियां ने उन्हां दे दिल और उन्हां दी कैफियतां इस लैवल ते खुदा ताला दी ज़ात ही इस काबिल करदी है। लेकिन तुसीं हुण सानूं दसो भी वो जिहड़ा आज़ सल्लम ने जिस तरह गल फरमाई सी उन्होंने सामने होना जे उहदी सज़ा मुड़ तुसां ही भुगतनी है जिहड़े उहदे मुकाबले ते पे उन्हां गल्लां दे होंदे। तो दूसरी गल ये कि तनाज़ा तो होया इन्ना कि असी खुदा दे भेजे नूं मन्निया, या तो आखो मिर्ज़ा साहब तुहाडा ख्याल है कि वो जो अंग्रेज़ दे एजेंट सन फलाना तो पौधा ला गया, फलाना खुद काश्ता पौधा सी, वो असां तो नहीं ना उन्होंने खुद काश्ता मन्निया, असी तो उन्होंने दावादार, उन्होंने भी खुद अपनी जिंदगी भी यही गल आखी कि मेरे नाल गल करनी मिनाज नबूवत ते गल करो। बाकी रहा सवाल ये कि जी वो तुसी की समझते हो, तो किहड़े नबी से किहड़ा एक नबी का नाम लो जिन्होंने उस जमाने के विच इन्हां वंस-वन्ने इल्ज़ाम ला के तो रिजैक्ट नहीं किया। लिहाजा गल इन्नी कि थां असां नहीं छड्डनी, तुहानूं दिसदा पिया कोई नहीं पर छड्डदे, और पाकिस्तान दे विचों अपना स्टेक आमदी नहीं चुकते, भावें जो मर्जी कर लो तुसीं। लेकिन उत्ते खुदा भी है, वो भी तो वेंदा ना पिया सारा कुछ। जिथों तक पाकिस्तान ते आमदियां कुर्बानी देनी तो उन्नी देनी ना जिन्नी उन्हां दी ताकत है, तो जिथे आमदियां दी ताकत मुक जानी उस तो पिछे खुदा ताला दी ताकत है। असी समझने कि खुदा ताला दी ताकत एक पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया दे तहोबाला करने वाली ताकत वाला खुदा है, मालिकुल मुल्क है ना, वो कायनात दा मालिक है। हाँ एक गल अलबत्ता है, वक्त इंज आ जांदे
कि जिदी खातर कायनात पैदा की गई, ये दावा मौजूद सी ना, और ये आंदे हो ना कि मतलब है कि आज़ सल्लम की खातर कायनात पैदा की गई, जिदी खातर कायनात पैदा की गई थी, उन्होंने मक्के चो बाहर कढ़न लग्या, मतलब पिंड च नहीं रहन दिता किसी ने। ये वक्त भी आउंदे ने, लेकिन अगले ज़माने फिर की दसदे ने। मतलब अल्लाह ताला दे जेड़ा कुरान शरीफ आके फरमाया अल्लाह ताला ने कि ऐसा ऐसा वक्त मुश्किल आउंदा सी कि ज़मीन जड़ी सी तंग होने लग पौंदी, और तंग हो के औखे हो के पुछते सन मता नसरुल्ला कि अल्लाह की गल मदद गई किते, वो मनण वाले ही ये गल आंदे सन। मक्के दे जेड़े मुशरक सन वो तो मता नसरुल्ला नहीं सनाते, आंदे तो मनण वाले ही सन। लिहाजा मता नसरुल्ला वाली स्टेज पर जिस वे तुम लै जाते हो इंसानों नूं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਹਬਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਦਾਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮੰਨਣਾ। तो असी जिन्ने जो कि हाँ वो साड़ी इस्तात का साढ़े नालों ज़्यादा साढ़े खुदा नूं पता है, तो वो असी तो जिन्ने जो कि हाँ विच बैठे हैं, जिथे जाके साड़ी ताकत मुक जाए उत्थे अल्लाह ताला की ताकत मुड़ नाल ही है ना, वो तो किसी पासे नहीं पहुँचाती। बहरहाल ये वक्त और ज़माने दस दिन, और ये मुताबिक ही तुसां टुरना, ये मुताबिक ही असां टुरना। बाकी इन्हां हरकतां नाल, इन्हां चीज़ां नाल, इस तरह के फैसलों नाल, इस तरह की चुप जिहड़ी हुकूमतां विखांदियां पईयां कर करके उन्हां तो इक्को गल साबित हुंदी है कि तुसीं ज़मीन दा ज़मीन ते ही फैसला मंगदे हो, उहदे च आसमान ते खुदा दा दखल कोई ना समझदे। असीं ये समझने हैं कि ज़मीन पर कुछ हो नहीं सकता जब तक आसमान पर करार नहीं पा जाता। लिहाजा इन्हां दोनों अकीदियां नाल तुसी फिर मारी आओ, तो असी अपनी जिंदगियां वेंदे पे हैं जगह जगह, और आइंदा भी अल्लाह ताला विखाएगा। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।